الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر دينه من الفتن. رواه البخاری. معزز حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی وہ موضوع ہے موجودہ فتنوں کے دور میں مومن کا کردار. آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ فتنہ کہتے کسے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. فتنے کا معنی ہے آزمائش کے، امتحان اور اگزام کے. اللہ تبارک تعالیٰ مومن کو فتنے میں کیوں ڈالتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایک مومن کو آزماتا کیوں ہے؟ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک سونار جو ہوتا ہے، گولڈ اسمتھ جسے کہا جاتا ہے، سونار، وہ سونے اور چاندی کو آگ میں تپاتا ہے، آگ کے حوالے کرتا ہے، بھٹی میں ڈالتا ہے اسے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈالنے کا؟
मकसद ये होता है कि सोने के अंदर जो मैल और जो कुचैल है, जो खराब मादा है, वो निकल जाए, वो अलग हो जाए, उससे वो एक खालिस सोना बन जाए। इसलिए क्या है, वो सोनार क्या है, उस सोने को आग के हवाले करता है। अल्लाह तबारक ताला मोमिन को क्यों आजमाता है? इसलिए कि हमारे और आपके दरमियान में जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ कमी और जो कुछ गुनाह जो थोड़े बहुत हैं, उससे अल्लाह तबारक ताला पाक करना चाहता है। इसलिए क्या है, एक मोमिन को अल्लाह तबारक ताला आजमाइश में और फितने में डालता है। हजरात गिरामी, ये दुनिया बड़ी तेजी से अपने खात्मे की तरफ जारी है। बड़ी तेजी से ये दुनिया अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है, रवा और दवा है। जैसे जैसे ये दुनिया कयामत की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के फितने सर उठाएंगे। आपको आजमाइशों के दौर से गुजरना पड़ेगा, मुख्तलिफ तरह की परेशानियां आएंगी, उसको हमें और आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन हम और आप जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा दीन, हमारा नबी और हमारे रसूल ने हमें ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया, उन फितनों से बचने के लिए कुछ तदाबीर भी सिखाए हैं। ये नहीं कि फितने आएंगे तो तुम इस फितने के जद में पड़ जाओगे और तुम अपने ईमान का और अपने दीन का तुम सौदा कर बैठोगे, नहीं, बल्कि उन फितनों से बचने के लिए भी अल्लाह और उसके रसूल ने हमें कुछ रास्ते बताए हैं, कुछ तरीके, कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ता दिया है। उन्हीं उसूल और उन्हीं ज़ाब्तों को आज आपके सामने इस खुतबे में पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हज़रात गिरामी, इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने दो तरह की चीज़ें पैदा किया है, एक शर और एक बुराई, एक शर और एक खैर। अगर एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई भी है, एक तरफ अच्छे लोग हैं तो दूसरी तरफ बुरे लोग भी हैं, एक तरफ सच का साथ देने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ बुराई का भी साथ देने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया सूरह अंबिया के अंदर, वनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजाउन, क्या मेरे बंदो, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर के जरिए से और खैर के जरिए से भी आजमाऊंगा। और याद रखना, व इलैना तुरजाउन, तुम्हें हमारी तरफ लौट करके आना है। ये आयत करीमा हमें बताती है कि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ तरीके से भी आजमाएगा, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ फितनों से दो चार करेगा। कभी अल्लाह तबारक ताला मुश्किलात का पहाड़ हमारे ऊपर मुसल्लत करके आजमाएगा, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खुशियों का दिन भी दिखाएगा, कभी सेहतो तंदुरुस्ती को छीन करके आजमाएगा, तो कभी ताकत और कुव्वत दे करके भी आजमाएगा, कभी मालो दौलत की कसरत देगा, इतना मालो दौलत देगा कि आप उसको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस माल को हम कहां खर्च करें। कभी अल्लाह तबारक ताला इस कदर मुहताज और जरूरतमंद बना देगा कि आज आप दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि आप दूसरों के दर पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें मुख्तलिफ तरीके से आजमाएगा। हज़रात गिरामी, ये तमाम बातें जो आपके सामने रखी गई, इसका खुलासे कलाम ये कि एक मोमिन के जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के हालात आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते हैं। हमें और आपको उन हालात का सामना करते हुए खरा उतरना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों आजमाता है? इसलिए कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि हमारे कौन ऐसे मोमिन बंदे हैं जो परेशानी के आलम में हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, कौन हर हाल में हमारा शुक्रगुजार बंदा बनता है और कौन नाशुक्री करता है, कौन जब हम उसको परेशानी में मुब्तला करते हैं, जब उसको हम फितनों के अंदर मुब्तला कर दें, तो कौन हमारा ऐसा बंदा है जो सब्र करे और कौन ऐसा बंदा है जो क्या है बेसब्री का मुजाहिरा करे। हज़रात गिरामी, फितने मुख्तलिफ तरीके से हैं। आइए कुछ फितनों को आपके सामने रखूं कुरान और हदीस की रोशनी में। बास फितने जो होते हैं
वो माल और दौलत की वजह से, आल और औलाद की वजह से। अल्लाह तबारक ताला ने साफ लफ्जों में कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि ये तुम्हारे माल और तुम्हारी ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, तुम्हारे लिए फितने हैं, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बड़ा अज्र के लायक है। यानी जो तुमने इस दुनिया में कमाया और कमा करके उसको अल्लाह के पास भेज दिया, वो कल कयामत के दिन तुम्हें एक बहुत बड़े अज्र के शक्ल में दिखाई देगा। हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, कि ईमान वालो, तुम्हारी ये बीबियां, तुम्हारे ये बच्चे, तुम्हारा ये माल और दौलत, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, सब ये तुम्हारे दुश्मन हैं। तो क्या वाकई हमारे बीवी, हमारी बीबियां, हमारे बाल बच्चे और जिस माल को हमने कमाया, क्या ये वाकई हमारे लिए फितना है? नहीं मेरे भाई, ये उस वक्त फितना बन जाएगा, ये उस वक्त आपके लिए दुश्मन होगा जब ये सारी चीजें आपको अल्लाह की इताअत से रोक दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने से, अल्लाह की इबादत करने से। जब ये सारी चीजें आपको मस्जिदों से दूर कर दें, तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए, ये हमारा दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, के लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है, उनको मुखातब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान किया, के लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारा माल और तुम्हारी ये औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दें, अल्लाह के जिक्र से कहीं ऐसा ना हो गाफिल कर दें, रोजा नमाज को छोड़ने पर कहीं मजबूर ना कर दें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर जिक्र किया, बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयातियन्ना अलन नास ज़मानुन ला युबालिल मरो बिमा अखज़ा मिनल माल बि हलालिन औ बि हराम। ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा, लोगों को एक दौर से गुजरना होगा कि आदमी माल कमाएगा तो जर्रा बराबर भी नहीं सोचेगा कि ये जो मैंने माल कमाया है ये किस रास्ते से कमाया है, हलाल तरीके से कमाया है या हराम तरीके से कमाया है। एक ऐसा दौर मोमिनों पर आएगा जब आदमी के अंदर ये दिल, उसके दिलों के अंदर जब ये चीज बैठ जाए कि हमें रातों रात क्या है, करोड़पति बनना है, अरबपति और खरबपति बनना है, जब ये चीज एक इंसान के अंदर बैठ जाए तो मेरे भाइयों उस वक्त इंसान क्या है, हलाल और हराम के जो रास्ते हैं उसको फलांग कर जाता है, उसको क्रॉस कर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फतह के अंदर इरशाद फरमाता है, सयक़ूलु लकल मुखल्लफूना मिनल आराब शगलतना अमवालुना व अहलूना फस्तगफिर लना, कि जो देहात में रहने वाले, ये जो बद्दू हैं, जो देहाती हैं, ऐ नबी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल, हमको हमारे माल ने, हमको हमारी आल औलाद ने अल्लाह के रास्ते में निकलने से रोक दिया था, अल्लाह के रास्ते में जाने से रोक दिया, यानी जिहाद करने से रोक दिया। तो वो आपसे कहेंगे कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए आप बख्शिश तलब कर दीजिए, अल्लाह से जो हम आपके साथ नहीं जा सके जिहाद में, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के इस्लाम के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए हम जब नहीं जा सके तो अल्लाह के रसूल हमारे लिए क्या है, बख्शिश तलब कर दीजिए। हजरात गिरामी, इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला ने माल को, आल औलाद को फितना करार दिया, साफ लफ्जों में ये बयान किया। तो ये माल और औलाद क्या है, हमारे लिए आजमाइश है और ये फितना है, लेकिन ये माल और औलाद उस वक्त फितना होंगे जब ये अल्लाह की इताअत करने से रोक दें, अल्लाह और उसके इताअत करने से, आमाले सालिहा करने से जब ये हमें मना कर दें, फिर क्या है, ये माल और औलाद हमारे लिए आजमाइश और ये हमारे लिए फितना हो जाएंगे। हजरात गिरामी, इसी तरीके से दूसरी जो चीज है, हजरात गिरामी, इसी तरीके से
दूसरी जो चीज है वो है शहवत का फितना। शहवत, चाहे वो बीवी बच्चों की शहवत हो, माल और दौलत की शहवत, हस्ब और नसब की शहवत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये तुम्हारी बीबियां, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन, और तुम्हारे ये बच्चे, इन सारे लोगों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर मुज़य्यन कर दी गई है, तुम्हारे दिलों में पेवस्त कर दिया गया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, और सोने और चांदी का ढेर। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इतने सोने हो जाएं, मैं फला कंपनी का मालिक बन जाऊं, हमारे पास ये जायदाद हो जाए, हमारे पास ये जायदाद हो जाए। हर आदमी की ये चाहत है। अल्लाह तबारक ताला ने इन सारी चीजों की मोहब्बत इंसानों के दिलों में मुज़य्यन कर दिया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और फरमाया उम्दा किस्म के घोड़े और ये चौपाइयां, ये जानवर, इतना सारा, ये सारी चीजों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की चीजें, ये सिर्फ दुनिया तक महदूद हैं। बहुत सारे लोगों को तो दुनिया में भी नसीब नहीं होती। आदमी इंतकाल कर जाता है, बहुत मारूफ और मशहूर हदीस आपने सुना होगा कि जब आदमी इंतकाल कर जाता है तो उसके साथ सिर्फ 3 चीजें जाती हैं, 2 चीजें वापस आ जाती हैं, 2 चीजें उसको कब्र तक छोड़ करके वापस आ जाते हैं। सिर्फ इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाती है, और वो है इंसान के आमाल। आमाल उसका साथ नहीं छोड़ता। तो मेरे भाइयों, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम उस चीज को अपना साथी बनाएं जो मरते दम तक भी हमारा साथ ना छोड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीजों को मेरे भाइयों फितना करार दिया और आजमाइश करा दिया। तो इस दौर का जो फितना, वो बीबी और बच्चे, माल और दौलत की कसरत, और इसी तरीके से इस मौजूदा दौर का एक और फितना जो सबसे अहम फितना, वो है मीडिया का फितना। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, मेरे भाइयों इस मीडिया ने इस कदर तूफान बर्पा कर दिया है, इनकलाब बर्पा किया कि पूरी दुनिया को समेट करके आपके सामने रख दिया है। आप जब चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये जो वीडियो को जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, चंद मिनट के बाद अभी इसको अपलोड किया जाएगा। आप दुनिया के जिस कोने में चाहते हैं आप इसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इस मीडिया के जरिए, इस मीडिया ने मेरे भाइयों मुआशरे और समाज के अंदर और सोसाइटी के अंदर बेगैरती, बेहयाई और फुहाशे और उरियानियत का इसने सैलाब बर्पा कर दिया है। पूरी दुनिया लोगों के सामने नंगी है, पर्दे का जनाजा निकाल दिया। जो चीज भी आप चाहें मेरे भाइयों इस मीडिया के जरिए से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इस जमाने का जो एक अहम फितना है वो है मीडिया। इसी तरीके से इस दौर का एक और फितना वो ये कि मुस्लिम ममालिक में बदअमनी का फितना, चैन और जो सुकून है उसका खत्म हो जाना। जो मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के कानून और उसूल और ज़ाब्ते के लिए बनाया जाए, उस मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के कानून को नाफिज ना किया जाए तो मेरे भाइयों इसका नतीजा खूरेजी की शक्ल में निकल करके आता है। वो मुस्लिम ममालिक जहां ना इज्जतें महफूज हैं, ना इंसान की जान की कदर कीमत है, और इसकी पेशीन गोई अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ही जिक्र कर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतक़ारबुज़ ज़मान, कि जमाना करीब हो जाएगा। और यह कयामत की एक निशानी है
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، ویقبض العلم، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ عمل کم ہو جائے گا۔ علم کے اٹھانے سے مطلب یہ کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے والے لوگ بہت کم بچیں گے اس دنیا میں۔ علماء جیسے جیسے جائیں گے اس دنیا سے، ان کی جگہ کو کوئی پر کرنے والا نہیں رہے گا۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کرتے ہوئے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اٹھ جانے کا کچھ خرابیوں کا ذکر کیا تو حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیاد میں تمہیں مدینہ کی گلیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ دانشمند سمجھتا تھا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل لا یعملون بشیء مما فیہما، کہا زیاد کیا تم یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ تورات اور انجیل کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے؟ کہا نہیں عمل کرتے۔ یہی حال اس امت کا ہوگا، یہی حال اس امت کا ہوگا، اور آج وہی ساری چیزیں ہیں۔ حضرات گرامی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور لوگوں کے دلوں کے اندر لالچ بیٹھ جائے گا، لوگ حریص ہو جائیں گے، مال کے حریص ہو جائیں گے، مال و دولت کے حریص ہو جائیں گے، آل اور اولاد کے حریص بن جائیں گے، وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج عام ہو جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، قتل اور غارت غری، خوریزی، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی یوکرین کا یدھ ختم نہیں ہوا، ایک اور مصیبت آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اللہ تو امن و امان پیدا کر، اللہ تو خاص طور سے فلسطین کے اندر اللہ تو امن اور سکون کی زندگی پیدا کر دے، آمین۔ حضرات گرامی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل اور غارت گری عام ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اندر فساد پھیل جائے گا، اور وہ فساد بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ جو فساد، جس فساد اور جس برائی کو پھیلنے میں 1 سال لگتا تھا، جیسے جیسے قیامت قریب آتا جائے گا ویسے ویسے یہ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلیں گے، جنگل کی آگ کی طرح میرے بھائی یہ پھیلیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اور آج اس چیز کو سمجھنے میں کیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے، میڈیا چند منٹ کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر وہ فتنے پھیلا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مطلب زمانہ کے قریب ہونے کا یہ ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا، وقت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری روایت کے اندر ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ کہ 1 سال 1 مہینہ کے برابر لگے گا۔ 1 سال گزر گیا تو ایسا احساس ہوگا کہ جو 1 سال یہ گزرا ہے یہ 1 مہینے کا تھا، اور 1 مہینہ جب گزرے گا تو آدمی یہ احساس کرے گا، اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ 1 مہینہ جو ہم نے گزارا یہ 1 ہفتے کا تھا، اور 1 ہفتہ جب گزرے گا تو آدمی کو ایسا لگے گا کہ 1 دن کا تھا۔ 1 دن گزارے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ 1 دن جو ہم نے گزارا یہ 1 گھنٹے کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ واری سے اس کو امت کو سمجھایا ہے، اس کو بتانے کی کوشش کی، اور وہ جو 1 گھنٹہ آپ کا گزرے گا وہ ایسا معلوم ہوگا کہ آگ سے جو آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اس سے جو چنگاری نکلتی ہے وہ چنگاری نکلی اور فوراً بجھ گئی۔ 1 گھنٹہ ہمیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ حضرات گرامی، تو اس موجودہ زمانے کا یہ ایک اور یہ فتنہ ہے، وقت کم ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گا، فتنے اور فساد، یہ برائیاں جنگل کی آگ کی طرح پھیلیں گی۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی، بعض فتنے ایسے ہیں، اور اس زمانے کا ایک اور اہم فتنہ وہ گروہ بندی اور جماعت بندی کا، فرقہ واریت کا۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्ना हादिही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, कि ऐ लोगो तुम बेहतर, तुम एक उम्मत हो, तुम एक उम्मत हो। व इन्ना हादिही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझसे डरो। यहां एक उम्मत होने से मुराद ये कि तुम एक दीन के मानने वाले लोग हो। फतकत्तौ अमरहुम बैनहुम ज़ुबरा, तो तुम लोगों ने दीन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरीहून, और जिसके पास जितना कुछ है आदमी उसी से खुश है। मेरे भाइयों, हम और आप देख लीजिए माशरे और समाज के अंदर कितने फिरके नजर आ रहे हैं, और हर फिरका यह दावा कर रहा है कि क्या है, हम ही जन्नत में जाने वाले लोग हैं, हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम लोगों ने दीन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। हजरत गिरामी, और ये दीन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना, इस चीज ने क्या है, उम्मत की दीवार को कमजोर कर दिया, उम्मत के बुनियाद को खोखला कर दिया है। हम और आप वो उम्मत जो एक नबी को मानती है, जिसका किबला एक है, जिसका कुरान एक है, जिसका रब एक है, सारी चीजें एक है, लेकिन यह उम्मत मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ गई, और इसका नतीजा यह निकल कर के आया कि आज उस उम्मत को अल्लाह तबारक ताला ने मुश्किलात और परेशानियों के जद में कर दिया। हजरात गिरामी, कयामत से पहले बास फितने ऐसे आएंगे कि आदमी अपने ईमान को नहीं बचा पाएगा, अपने दीन को महफूज नहीं कर पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत को आगाह किया, बताया कि लोगों, तुम फितने के वाक़े होने से पहले पहले आमाले सालिहा कर लो। बादरु बिल आमाले फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबिउ दीनहु बिअर्द मिन दुनिया। कहा, लोगों, तुम फितनों के वाक़े होने से पहले पहले तुम आमाले सालिहा कर लो, अच्छे अमाल कर लो, क्योंकि जब फितने वाक़े होंगे तो आदमी उस वक्त अपने ईमान को नहीं बचा पाएगा। आदमी सुबह को मोमिन रहेगा, शाम का सूरज नहीं डूबेगा और वो काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन रहेगा, सुबह का सूरज नहीं निकलेगा और वो काफिर हो जाएगा। और उसकी वजह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यबिउ दीनहु बिअर्द मिन दुनिया, आदमी दुनिया के चंद इवज, चंद सिक्कों की वजह से, चंद रुपयों की वजह से अपने ईमान को, अपने दीन का वो सौदा कर डालेगा। आज ये सारी चीजें आम हैं। आप किसी दुकान पर जाइए, कपड़ा खरीदने के लिए जाइए, आपने कपड़ा लिया, आप क्या है, मोल तोल कर रहे हैं, भाव उसका पैसा आपको देना है, अदा करना है। अदा करने से पहले आप जब उसका रेट पूछते हैं, शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जो होता है, क्या कहता है, अल्लाह की कसम मैंने इसको इतने रुपए में खरीदा, इतने में तो हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, यानी जितने में हमने इसको खरीदा है वो भी क्या है, हमारा इसमें लॉस हो रहा है, हम इसमें घाटे में चले जाएंगे। हालांकि हकीकत यह है कि वो दुकानदार उस माल को उतने में नहीं खरीदा है, चंद सिक्कों की इवज की वजह से अपने दीन का, अपने ईमान का आदमी सौदा कर डालेगा। हजरत गिरामी, आपके सामने जो कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारे फितरों का तज़किरा किया गया, इन फितरों में से बास फितने ऐसे हैं जो इस उम्मत के अंदर पाए जा रहे हैं, और बास फितने ऐसे हैं जो कुर्बे क़यामत तक, कुर्बे क़यामत यानी जब क़यामत जैसे जैसे करीब होगा वैसे वैसे वो फितने हमारे सरों पर आएंगे। मेरे भाइयों, उन फितनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया, कहा बास फितने ऐसे होंगे जिस तरीके से आसमान से बारिश टपकती है, यानी बारिश के कतरे जिस तरीके से पे दर पे लगातार क्या है आते हैं, ऐसे ही फितने जाहिर होंगे। और बास फितनों की तशबीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हवाओं से दिया कि वो हवा जो गर्मी के मौसम में तेज हवाएं जो चलती हैं और आपके घरों में जाकर के पहुंच जाती हैं, ये फितने तुम्हारे घरों तक पहुंचेंगे। और बास फितनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी से तशबीह दी कि जिस तरीके से रात की वो तारीकी तुम्हारे घरों में पहुंच जाती है, तुमसे इजाजत नहीं लेती है, वैसे ही वो फितने तुम्हारे घरों तक पहुंचेंगे। और तुम्हारे क्या है, उस वक्त जब ये फितने समंदर की मौजों की तरह, समंदर की लहरों की तरह उठेंगे, और क्या है, जो चीज भी उनको
जो मिलेंगी उन सारी चीज़ों को वो बहा ले जाएंगी। जिस तरीके से वो समंदर का वो लहर और वो मौजें जो भी चीज उसको मिलती है उसको बहा ले जाती है। मेरे भाइयों, ऐसे ही जब फितने उठेंगे तो फिर क्या है, आदमी सुबह को मोमिन रहेगा, शाम को वो काफिर हो जाएगा, और शाम को वो मोमिन रहेगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन फितनों से बचाया, हमें इन फितनों से डराया है और इससे बचने की तलकीन की है, क्योंकि जब फितना आएगा तो ये नहीं देखेगा कि इस माशरे के अंदर कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबको समेट ले जाएगा। और इसकी मिसाल अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर दिया, फरमाया वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि ऐ लोगों तुम इन फितनों से डर जाओ, उन फितनों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जब फितने आएंगे तो क्या है, तुम में से किसी खास मुजरिम को, किसी खास गुनहगार को क्या है उन पर सिर्फ लाहिक नहीं होंगे, बल्कि जो भी मिलेगा सारे लोगों को क्या है समेट ले जाएंगे। उन फितनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या है डराया है। इसी तरीके से जब फितने जाहिर होने लगेंगे, जब फितने सर चढ़ करके बोलने लगेंगे, तो उस वक्त मोमिन के पास माल और दौलत की कसरत होगी, रुपए और पैसे की कमी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जमाने में जब लोगों के पास माल और दौलत की कसरत होगी तो आदमी के पास जो उसका सबसे बेहतरीन जो सरमाया होगा वो बकरियों की शक्ल में होगा, जिसे वो लेकर के पहाड़ों की चोटियों पर चला जाएगा, उस जगह चला जाएगा जहां पानी नाजिल होती है, पानी आसमान से टपकता है, उस जगह चला जाएगा अपने दीन को, अपने ईमान को बचाने के मकसद की वजह से। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिको अन यकूना खैरा मालिल मुस्लिम गनमुन यतबउ बिहा शाफल जिबाल व मवाक़िल कतर यफिर बिदीनिहि मिनल फितन। फरमाया करीब है कि एक ऐसा जमाना आए कि आदमी का जो सबसे बेहतरीन जो सरमाया हो वो उसका बकरियों की शक्ल में होगा, जिसको वो लेकर के पहाड़ियों की कोह में जाएगा और वहां जिंदगी गुजारना पसंद करेगा बनिस्बत इसके कि वो शहरों में रहे। उसका मकसद होगा कि किसी तरीके से हमारा ईमान बच जाए, किसी तरीके से हमारा दीन बच जाए, और क्या हमें अपने दीन को बचा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। हजरात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह और इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सताकून फितनुन, कि फितने अनकरीब ये वाक़े होंगे, और जब फितने वाक़े होंगे तो बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। वमन युशरिफ लहा तस्तशरिफहु, और जो शख्स उसमें झांकेगा वो उसमें क्या है मुलव्विस हो जाएगा। वमन युशरिफ लहा तस्तशरिफहु वमन वजदा मलजान औ मुआज़न फलियाउज़ बिही, जिस शख्स को जहां जगह मिले वो वहीं पर पनाह ले ले, वहां से निकलने की कोशिश ना करे। इस हदीस का मतलब क्या है कि एक आदमी बैठा हुआ है, बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है। यानी फितने इस कदर रोनुमा होंगे, इस कदर फितने पे दर पे आएंगे, लगातार फितने अपना सर उठाएंगे कि जो आदमी बैठा हुआ है वो खड़े होने वाले से बेहतर होगा। यानी जो खड़ा होगा वो सारे फितनों को देखेगा, और जाहिर सी बात है कि जब फितनों को देखेगा तो बहुत मुश्किल से वो अपने आप को बचा पाएगा, और जो बैठा हुआ होगा वो क्या है उन फितनों को नहीं देखेगा। इसलिए क्या है, बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा। हजरत गिरामी, एक और रवायत है, हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कसम खा करके कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। आपने फरमाया, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितन, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितन, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितन। कहा खुश नसीब है वो इंसान, खुशकिस्मत है वो इंसान जो फितनों से बचा लिया गया, जो फितनों से महफूज कर दिया गया, जो फितनों से बच गया वो खुशनसीब है। और जिसको फितनों के अंदर मुलव्विस कर दिया गया, जो फितनों में पड़ गया, वलमन इब्तुलिया फसबरा फवाहा, तो उस पर अफसोस है, या अगर वो उस पर सब्र कर ले गया उन फितनों को देख करके तो उसके लिए भी खुशनसीबी है। हजरत गिरामी, आपके सामने इस खुतबे जुमा के अंदर मौजूदा दौर के फितने आपके सामने रखे गए। इंशाअल्लाह आने वाले खुतबे जुमा में उस क्या जब फितने वाक़े होंगे तो उस वक्त मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए, उन सारी बातों को आपके सामने पेश किया जाएगा। आइए हम सब मिल करके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जो
فتنے हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, ए अल्लाह इन फितनों से तो हमें महफूज रख। अल्लाह जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पर इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हमारी खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।